আমরা ভিক্ষা চাই না, সম্মান চাই। কেন এমন বললেন মধুবনীর মৈথিলি শিল্পীরা? দৈনিক সংবাদ অনলাইনের এক্সক্লুসিভ রিপোর্ট। অনেক প্রতিবন্ধকতাকে দূরে সরিয়ে বংশ পরম্পরায় এই মৈথিলি শিল্পকে বাঁচিয়ে রেখেছেন এলাকার শিল্পীরা। গোটা পরিবারের ছোট থেকে বড় সকলেই যেন হাতে হাত মিলিয়ে শিল্প সৃষ্টিতে মেতেছেন। এক একটি ছোট শিল্পশৈলীর জন্য একটা গোটা দিন বেরিয়ে যায়। এসবের পরেও সংসার চালাতে জমিতে চাষ করতে হয় পরিবারের সদস্যদের। এসবের মধ্যেও শিল্পকে বাঁচিয়ে রাখার এক কঠিন লড়াই। পরিবারের ছোট সদস্যদের হাতেও তৈরি হচ্ছে অসাধারণ সব শিল্পকর্ম, সত্যি যা অবাক করে দেওয়ার মতো। শিল্পীর শিল্পসত্তা বিকশিত হচ্ছে প্রতিটি শিল্পকর্মে, মিলেছে স্বীকৃতি। গ্রামের একাধিক পরিবারের সদস্য পদ্মশ্রী থেকে শুরু করে বিভিন্ন রাজ্যের নানা সরকারি পুরস্কারে সম্মানিত হয়েছেন। এই শিল্পী পরিবারগুলির একটাই দাবি, তাদের শিল্পের বিকাশ হোক। এই শিল্পকর্ম থেকেই তারা যেন জীবন ধারণ করতে পারেন। তাদের শিল্প দেশ দেশান্তরে ছড়িয়ে পড়বে এমন আশায় বুক বেঁধে মৈথিলি শিল্পকে বাঁচিয়ে রাখার নিরন্তর প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছেন এলাকার শিল্পীরা। নমস্কার, দৈনিক সংবাদ অনলাইনে আপনাদের স্বাগত জানাই। আমরা চলে এসেছি বিহারের মধুবনী জেলায়। একদম আমি যেখানে দাঁড়িয়ে আছি সেটা কিন্তু একদম মধুবনীর অন্তর্গত, অর্থাৎ মধুবনী নামেরই যে জায়গা সেখানেই আমি দাঁড়িয়ে আছি। এবং আপনারা সকলেই জানেন যে মধুবনী বলতেই সেখানকার শিল্পের কথা বোঝায়। আর সেই শিল্পের এই খোঁজ খবর দিতে আমরা কিন্তু চলে এসেছি জিতোয়ারপুর কলাগ্রামে। এই জিতোয়ারপুর কলাগ্রামেই কিন্তু ঘরে ঘরে এই মিথিলা পেন্টিং বা মধুবনী পেন্টিং যাই বলুন না কেন, এখানকার মানুষ বলেন মিথিলা পেন্টিং। সেই মিথিলা পেন্টিং এখানে কিন্তু ঘরে ঘরে হয়। এমনই একটি ঘরের সামনে আমরা দাঁড়িয়ে আছি। আমার পেছনে এই যে এই পেন্টিং একদম ঘরের মধ্যে তৈরি করা হয়েছে। আপনারা যে পেন্টিংটা দেখতে পাচ্ছেন সেটা পাসওয়ান সমাজের যে দেবতা, সেই দেবতার ছবি কিন্তু এই পেন্টিং এর মধ্যে তুলে ধরা হয়েছে। অবশ্যই আমরা এখানকার শিল্পীদের সঙ্গে কথা বলবো যে তারা কিভাবে এই কাজ করেন, এই কাজ করে তারা কতটা উপকৃত হচ্ছেন জাতীয় আন্তর্জাতিক স্তরে। এখানে কিন্তু ঘরে ঘরে মানুষ সম্মান পেয়েছেন। ফলে এই জিতোয়ারপুর কলাগ্রাম এই শিল্পে কিন্তু গোটা বিশ্বে একটা নজির তৈরি করেছে। আমরা অবশ্যই কথা বলে নেব এখানকার শিল্পীদের সঙ্গে। আমরা চলে এসেছি রঞ্জন পাসওয়ান নামের আরেক শিল্পীর বাড়িতে। সেখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে তিনি কিন্তু হাতেই একদম তৈরি করছেন। আমরা একদম লাইভ দেখাচ্ছি যে সেই শিল্প, সেই যে মৈথিলি শিল্প বা মিথিলা আর্ট, সেই মিথিলা আর্ট আপনারা কিন্তু একদম চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছেন কি সুন্দর করে তৈরি করা হচ্ছে। একদম ন্যাচারাল কালার, অর্থাৎ প্রাকৃতিক রং, পরিবেশ বান্ধব রঙের মাধ্যমে কিভাবে তৈরি করা হচ্ছে এই শিল্প। रंजन जी, ये क्या है? ये जो आर्ट है क्या है? ये जो क्या पेंटिंग है? हाँ, क्या बना रहा है? ये पीकॉक है। अच्छा, पीकॉक है। और जैसे कि हम लोग SC ST से बिलोंग करते हैं, हाँ, तो हम लोग गोदना पेंटिंग का ज्यादा करते हैं। तो गोदना पेंटिंग में जैसे हम लोगों का कुल देवता है राजा शैलेश, और जैसे कि आदिवासी बंजारा, इस सब के ऊपर, इस सब पे ज्यादा हम लोग फोकस करते हैं और इस पे ज्यादा बनाते हैं। और हम लोग का जो है गोदना का ज्यादा ये कला में ये है। और पहले के समय में जो है जो मिथिला पेंटिंग बनाया जाता था, तो उस समय में जो है जातिगत भेदभाव होता था। तो हमारे कास्ट के लोग जो है उस समय में गोदना पेंटिंग जो बनाते थे, तो बड़े जाति के लोग बोलते थे कि अरे ये देवता मेरा है, भोलेनाथ मेरा है, महादेव शिव पार्वती मेरा है, हाँ राम जी मेरा है, तो ये लोग तुम लोग छोटे जाति होकर के ये क्यों बनाते हो। तब हमारी एक दादी माँ ही थी, नेशनल अवार्डी हैं, चानो देवी, तो उन्होंने गोदना पेंटिंग का शुरुआत किया। तो गोदना पेंटिंग में तो वो अपने जो हम लोग के कुल देवता है राजा शैलेश, उसके ऊपर बनाना चालू किए जी। तो गोदना भी हम लोग बनाते हैं, तो कुछ गोदना पेंटिंग्स भी हम दिखाते हैं आपको जी। रोजगार मिलता है ये करके, ये जो आर्ट? रोजगार जो मैं लगभग 25 सालों से इस कला से जुड़ा हुआ हूँ। और मुझे 2010-11 में राज्य पुरस्कार मिला है बिहार सरकार के द्वारा। अभी जो है फिलहाल राष्ट्रपति भवन गए थे, वहाँ जितने भी पद्मश्री हैं, नेशनल अवार्डी हैं, वो लोग हम लोग 10 कलाकार गए थे राष्ट्रपति भवन।
तो वहाँ भी हम लोग को जो है राष्ट्रपति मैम के द्वारा मोमेंटम दे करके सम्मानित किया गया है जी। और हम लोग का जो मुख्य रोजगार जो है यही है, इसी को बनाना है, इसी से पूरे परिवार का भरण पोषण जितना भी है सब इसी से, पेंटिंग से ही, और कोई दूसरा सोर्स नहीं, सिर्फ पेंटिंग ही। আপনারা কিন্তু শুনছেন যে এখানকার মানুষজনের এই যে আয়ের যে সূত্র সেটা কিন্তু এই শিল্প দিয়েই কিন্তু তারা বেঁচে আছেন, এই শিল্প দিয়েই তারা জীবন ধারণ করছেন এবং তারা চান যে এই শিল্প দিয়েই মানুষের কাছে পৌঁছে যেতে এবং তা থেকে যে রোজগার হবে তা দিয়েই যেভাবেই হোক তাদের যেন জীবন চালিত হয় বা তাদের জীবন যাত্রার যেন আগামী দিনে আরো কিছুটা উন্নতি হয়। আমাদের আগেই বলেছিলাম যে এখানে কিন্তু ঘরে ঘরে মানুষ পুরস্কৃত হয়েছেন, ঠিক যেমন এই যে রঞ্জন পাসওয়ানের বাড়িতে আমরা এসেছি, তিনি কিন্তু কয়েক মাস আগেই রাষ্ট্রপতির কাছ থেকে এই পুরস্কারটি নিয়েছিলেন, যে পুরস্কারের ছবি আমরা তুলে ধরছি। এখানে কিন্তু ঘরে ঘরে মানুষ এতটাই কৃতী যে এখানকার শিল্পের খ্যাতি দেশের নানা প্রান্তে ছড়িয়ে পড়ে এবং সরকারের দ্বারাও কিন্তু এরা নানাভাবে নানা সময় সম্মানিত হয়েছেন। শিল্পের যে কদর, সেই কদর তারা পেয়েছেন, কিন্তু তারা চাইছেন যে তাদের রোজগার বাড়ুক, তাদের আয়টা বেড়ে যাক, তাহলে তাদের জীবন ধারণ আগামী দিনে আরো ভালো হতে পারে। শুধু পুরস্কার দিয়ে তো চলবে না, তার পাশাপাশি তাদের যে এই যে শিল্পের যে বিক্রি সেগুলো যাতে আগামী দিনে বাড়ে, সেটাই কিন্তু চাইছেন এখানকার শিল্পীরা। আমরা বসে রয়েছি এই পাসওয়ান পরিবারে। পাসওয়ান, আপনাদের বলে রাখি যে পাসওয়ান যে সম্প্রদায়, এই যে শিল্প অর্থাৎ যে মিথিলা পেন্টিং, তার কিন্তু 50% শেয়ার এই পাসওয়ান সম্প্রদায়ের আছে। কেন বলুন তো? যে এখানকার যে শিল্প, সেই শিল্পের বেশিরভাগটাই কিন্তু তৈরি করে এই পাসওয়ান সমাজের মানুষ। তো তেমনই একটি পরিবারে চলে এসেছি। আমার পাশে যিনি বসে আছেন তিনি সন্তোষ পাসওয়ান, তার পাশে রয়েছেন তার মা সুশীলা পাসওয়ান, আরো তাদের এই পরিবারের সব नागमणि, सुबोध पासवान, ये सब है। हाँ, तो আমরা তাদের সঙ্গে কথা বলে নেব। संतोष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है दैनिक संवाद में। तो क्या है कि कितने सालों से आप ये काम करते हैं? कितने साल? मैं तो बचपन से करते आ रहा हूँ। अच्छा, क्योंकि ये हमारा फैमिली वर्क है। मधुबनी शैली में जो गोदना पेंटिंग है, जो पहले किसी टाइम में ये शरीर के ऊपर बनाया जाता था, ये गोदना। अच्छा अच्छा। तो इसकी जन्मदाता हमारी छोटी दादी थी, स्वर्गीय श्रीमती चानो देवी जी, और उनका हस्बैंड था श्री रौदी पासवान जी। उनका देन है जिसके कारण आज लाखों लोगों को रोजगार मिल रहा है। हजार में नहीं, लाखों लोगों को इसका रोजगार मिलता है। जितने लोग हमारे पहले काम करते थे, मेरी मम्मी, मेरी दादी, एजुकेशन का अभाव था, शिक्षित कोई था नहीं, इसलिए ये लोग थोड़ा अभी हम लोग पीछे हैं अभी भी, क्योंकि जानकारी किताब में होती है, नॉलेज जो होती है अध्ययन करने से ही होता है। तो मम्मी पापा को उतना नॉलेज नहीं था, फिर भी मम्मी पापा अपना जैसे तैसे करके हम लोगों को एजुकेशन की तरफ बढ़ाए, तब जाके हम लोग थोड़ा बहुत सुविधाएं का फायदा लेते हैं। लेकिन फिर भी सरकारी सुविधाएं जो होती है वो तो मोस्टली 90% सिर्फ और सिर्फ कागजों में होती है। अगर भारत सरकार का ही हैंडीक्राफ्ट का बहुत सारी योजना है, विश्वकर्मा योजना है, राजीव गांधी शिल्प योजना है, गांधी शिल्प बाजार योजना है, क्राफ्ट बाजार योजना है। तो अपना जो डिपार्टमेंट का मार्केटिंग सेंटर है, हर डिस्ट्रिक्ट में मार्केटिंग सेंटर है। हम लोग कई बार बोल चुके हैं कि मार्केटिंग सेंटर के अंदर ही कलाकारों का एक ग्रुप होना चाहिए, जो मधुबनी जिला के 10 गांव 20 गांव मोस्टली काम करते हैं, जो इसी पे डिपेंड है। हम लोगों का कोई दूसरा रोजी रोटी नहीं है, पेंटिंग ही रोजी रोटी है, पेंटिंग ही रोजी रोटी है। पिछले 3-4 साल से थोड़ा बहुत काम चलता है, कभी चलता है कभी नहीं चलता है, कभी चलता है कभी नहीं चलता है। जानकारी का भी अभाव होता है, इसके लिए डिपार्टमेंट को गांव जो जितवारपुर शिल्प ग्राम है, कला ग्राम है, एक भी यहाँ कोई वर्कशॉप नहीं हुआ है लोगों को बताने के लिए कि भारत सरकार वस्त्र मंत्रालय में ये स्कीम है, ये योजना है, इसको आप इस तरीके से फायदा ले सकते हैं, किसी भी योजना का आप लाभ कैसे ले सकते हैं, इस तरीके का एक वर्कशॉप तो होना चाहिए।
एकदम कम से कम नहीं आप बराबर कर सकते हैं, साल में 2 बार 3 बार 4 बार, साल में 2 बार ही, साल में 2 बार ही लेकिन कर सकते हैं। तो इस तरीके से कोई भी आज तक योजना का यहाँ जागरूक करने के लिए कुछ नहीं होता है। इसलिए इस पर्पज से हमारा सरकार से सीधा सीधा मांग है कि अपने पास डिपार्टमेंट है, हर आर्टिस्ट का डाटा है आपके पास, आपके पास नेशनल अवार्डी है, शिल्प गुरु है, पद्मश्री है, स्टेट अवार्डी है। अरे उन्हीं में से जो जागरूक लोग हैं, युवा कलाकार, कुछ सीनियर कलाकार, उनका एक समूह बनाइए और लोगों को जागरूक करिए। योजनाओं का सीधा सीधा बेनिफिट कलाकार को हो, इस तरीके का वर्कशॉप करवाइए ताकि वो मल्टीनेशनल लेवल पे जा सके। आज अभी तक तो ठीक है, मान के चलिए 2 4 10 साल बाद में एआई का जमाना आएगा। कितने % लोगों को पता है एआई है क्या? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो क्या है, किसी को पता है? गांव में तो 0 है, सीधा 0, ऐसे लड्डू दे देंगे हम। मान के चलिए हम जैसे 10 युवा घूमते हैं पूरा हिंदुस्तान, तो थोड़ी बहुत समझ में आया कि एआई है तो ये फलाना है, यहाँ ऐसे इंटीरियर का काम होता है। हम यहाँ किसी से पूछते हैं इंटीरियर क्या है, किसी को पता होगा इंटीरियर क्या है? लेकिन वही चीज हम बताएंगे कि घर को सजाने के लिए जो काम करते हैं उसको इंटीरियर बोला जाता है। तो इस तरीके का सरकार का स्कीम में फंडिंग होता है 1000 करोड़, 1-2 करोड़ 200 रुपए 400 रुपए का बात नहीं होता है, हजारों करोड़ का फंडिंग होता है। लेकिन योजनाओं का लाभ डायरेक्ट पब्लिक को नहीं मिलता है और सरकार भी चाहती है कि पब्लिक जागरूक न हो। पब्लिक जागरूक हो जाएगा, शिक्षित हो जाएगा तो क्वेश्चन सवाल होगा, सवाल खड़ा हो जाएगा ना। सवाल जो खड़ा करेगा तो वो फिर अपने हिसाब का सरकार भी बनाएगा। हिंदुस्तान है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र है ये। यहाँ तो जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि जनता के ऊपर शासन करेगा। हम आपको चुन के रखते हैं, मेरा सरकार बनेगा, इंडस्ट्रीज बनेगा, फैक्ट्री बनेगा, हम लोगों को ही काम मिलेगा, लेकिन कुछ नहीं। आज इस मधुबनी कला में लाखों लोग रजिस्टर है, जिसको भारत सरकार प्रमाणित करते हैं कि आप मधुबनी कला का कलाकार है। लेकिन फिर भी इसमें एक एमएसएमई लोन लेने के लिए परेशानी है। छोटा मोटा लोन नहीं मिल सकता है इस पे। जो आर्टिजन क्रेडिट कार्ड है 1,50,000 1 लाख, आज 1 लाख रुपए से क्या होता है? इस सीट को बनाने में लगभग 600 रुपए का खर्चा होता है एक सीट को। एक सीट ब्लैंक बनाएंगे, जैसे व्हाइट टेक्सचर है, इसके ऊपर जो ये बेस कलर है ये काऊ डंग का कलर है, गाय की गोबर, दही, पान का पत्ता, उसको अच्छे से मिक्स करके कपड़ा से निचोड़ के फिर इसमें बनाते हैं। और जितना कलर है इस सारा नेचुरल कलर है, फूल पत्तियों का कलर है। इस सिर्फ पेपर बनाने में 600 रुपये हम लोगों को खर्चा हो जाता है। इसमें लागत ज्यादा नहीं है, लेबर ज्यादा है। अब 2 दिन लग गया मान के चलिए, तो 2 दिन आप काम करिएगा नॉर्मल तो 1000 रुपया लीजिएगा, लेकिन हम लोग 300 रुपया ही जोड़ते हैं। 2 दिन का 300 रुपया ही जोड़ते हैं, तो पेपर बनाने में हम लोगों का 600 रुपया का खर्चा होता है। আপনারা কিন্তু শুনলেন যে এই যে এই কাজ করতে কতটা পরিশ্রম হয় এবং এই কাজ কিন্তু পরিবেশ বান্ধব, কিন্তু সেক্ষেত্রেও আমরা যেটা শুনছিলাম সন্তোষজির কাছ থেকে যে এই যে কাজ সেটা কিন্তু সরকারের তরফে সহযোগিতা যতটা পাওয়া উচিত সেটা কিন্তু পাওয়া যাচ্ছে না। সরকারের উচিত এ ব্যাপারে আরো সচেতনতা তৈরি করা, এখানে কর্মশালা করা। আমরা সঙ্গে পেয়েছি সুশীলা দেবীকে, আমরা তার সঙ্গেও একটু কথা বলবো। आप कितने दिनों से ये काम करते हैं? ये हम तो 35 साल से बनाते हैं। 35 साल से? 35 साल से बनाते हैं। हमारे ये गांव घर में देहात में 16-17 साल में शादी हो जाता था, तो हमारा बच्चा लोग छोटा छोटा था तो रात में सुला देते थे। तो पहले ही बिजली पंखा नहीं था, और डिबिया था, मोटिया तेल जलता था घर में, तो मोटिया तेल डिबिया बना करके उसको बाद बच्चा सबके सुतार देते थे। उसको बाद हम लोग रात करके ज्यादा काम करते थे। दिन में सुबह में छोटा छोटा बच्चा परेशानी करता रहता था, तो दिन में उतना काम नहीं कर पाते थे, तो राते का ज्यादा हम लोग को बनाते थे पेंटिंग। शुरू में हम 2 ठो चुन्नी बनाए, 2 ठो चुन्नी बनाए, वो सलाई कोतली से बनाए हम। उसको बाद पिहुआ बनाते थे हम लोग अथी का रुइया से हम लोग कलर करते थे।
अब ये हम शुरू से बनाते हैं नेचुरल। वो जो मेरी सासू माँ मेरे लड़का बोला है ना, वही हम लोग को सिखाया था। तो रुइया को पिहुआ हम लोग पहले बोलते थे, तो बरस उरस नहीं चलता था, तो पिहुआ से हम लोग कलर करते थे और सलाई को तिल्ली से। उसको बाद आया ये बरस आया, नीम आया, तो अब नीम पेन से हम लोग बनाते हैं। यही गाँव में है, या जैसे ये हुआ सीम का पत्ता, पीपर का छाल हुआ, ये अति सिंगार फूल। কেমন লাগলো আপনাদের এই জিতোয়ারপুর কলাগ্রাম? নিশ্চয়ই খুব ভালো লেগেছে। আসলে এই যে শিল্প, এই মধুবনী শিল্প বা মিথিলা আর্ট, এর কিন্তু একটা আলাদা মাহাত্ম্য রয়েছে। এই গোটা গ্রামের মানুষ কিন্তু ঘরে ঘরে এই শিল্পের সঙ্গে যুক্ত। আমরা 2-3 জন মানুষের সঙ্গে কথা বললাম বটে, এইখানে সেগুলো করতেই অনেকটা সময় চলে গেল। আপনারা যদি এই মধুবনীতে আসেন, তবে অবশ্যই আসবেন এই জিতোয়ারপুর কলাগ্রামে। অর্থাৎ এই মধুবনী শিল্প বা মিথিলা আর্ট দেখতে হলে আপনাদের কিন্তু এই কলাগ্রামে আসতেই হবে। না এলে এই যে পরিবেশ বান্ধব যে শিল্প, সেই শিল্পের যে কি সৌন্দর্য, কি নান্দনিকতা, সেটা কিন্তু আপনারা অনুভব করতে পারবেন না। তাহলে মধুবনী এলে অবশ্যই আসুন জিতোয়ারপুর কলাগ্রামে। ক্যামেরায় উজ্জ্বল মালের সঙ্গে সুমিত চক্রবর্তী, জিতোয়ারপুর কলাগ্রাম, মধুবনী, বিহার।